Hello and welcome to each and every one of you to Steven Sir Makes It Easy, where at the end of every lecture and during the course of this particular year, I'll do my best to make sure that the accounting knowledge, the finance related knowledge that I'm going to provide you is in simple terms so that digest करने में problem नहीं होगा. Okay, a quick reminder, since these social media handles will be useful to you, you can connect with us besides YouTube through Facebook, Instagram and Twitter. I'll do my best that I am active on those particular platforms. Very importantly, you will notice a Telegram channel above. So if you can please join that Telegram channel. What is that going to do? The PDF of the question and answers, okay, chapter wise, whenever the chapter comes to an end, okay, it will be available in the description of every video. Besides, on that Telegram channel, whenever the chapter does come to an end, the entire chapter's PDF will be shared, the question as well as the answer. So you can obviously download it, and for your future revision purposes, reference purposes, it would be very useful. The textbook that is being utilized, if you intend to purchase this particular textbook from which the questions, whether it is the illustrations or the practice problems, are being explained, if you intend to purchase it online, the purchase link is also being provided in the description below. Okay, every time in every lecture, if you have missed out a previous lecture, most probably a card above me will be provided. So on a click on that card will take you to the previous lecture that you have missed out. Okay, necessary links of past lectures and upcoming lectures and the next lecture is also being provided, connected at the end of every lecture. Okay, so let me get started with my task for the day, which is to introduce you to your syllabus. Now let me make it very clear, okay, crystal clear, ताकि कोई confusion नहीं है. I am talking about state board, HSC level, bookkeeping and accountancy. Simple short form में accounts, because that is going to be my duty and responsibility to explain to you through the medium of YouTube all during this upcoming year. So very quickly, this is the cover of the textbook, just to make you realize, okay, or to show it to you. Also do note, okay, this textbook abhi ke abhi at this very moment you need not be purchasing, but whenever you do, please make sure the latest edition is what you are buying, because normally when a textbook from 1 year goes to the next year and there is a new version released, in all probability whatever were the errors, the typing errors, the mathematical errors, the accounting errors, you don't expect an accounting error in an accounts textbook, but it is human, hota hai, but it is rectified in the latest version. So I repeat myself, this is a subject which obviously you know, but hey, formally usko introduce to karana hi padega. Okay, so whenever you do purchase the textbook, आप वो textbook को खोल के देखोगे तो आपको नजर आएगा index. Okay, index में there are how many chapters? Well, if I count, if I know decent bit of counting, so 1 2 3 4 5 6 7, here it ends at 10, which is computer in accounting. Okay, now obviously there is a lot written here in the textbook. From the first till the last page, obviously there is a lot of thing. Okay, when we go through the textbook, okay, जो हमारा रास्ता होगा वो काफ़ी लंबा है. So there is a lot of kilometers of studies that between me and you हमको cover up करना है, and the road is not always going to be smooth
it will have its ups and downs. Easy, so, little difficult, very difficult. Okay, you have to expect that लड्डू पेड़ा तो आपको HSC लेवल पे मिलने वाला नहीं है. तो आई रिपीट, द रोड इज लॉन्ग, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, बट वेरी सिंपल. When you don't know the road, you hold on to someone, and let's just put it across like this. You hold on to my hand and you trust me. As simple as that. कि भाई अकाउंट्स का मैं नहीं बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, हाँ, बट एज फार एज एक्सप्लेनेशन इज कंसर्न उसका टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी. नाउ आई डिड शो यू अ वेरी लॉन्ग index, and the index itself has a lot of details. I'm not getting into reading all of this in my own style, same chapters, but not 10 of them, because some of the chapters are linked to each other. In the examination, whenever that is for your HSC board level, okay, they will not be different problems. Okay, you will always find that ये chapter और ये chapter में there is a what, there is a option that is coming. Okay, right now my request, please don't ask me in the comments, okay, or in other way that you communicate to me, sir option क्या क्या आएगा, sir which chapter can I leave, sir मेरे को ना 7th chapter, sir मेरे को ना 2nd chapter, I don't like it sir, can I leave it? My request, since you have reached after putting in all the hard work at this level, okay, ऑप्शन की चिंता, okay, ऑप्शन के ऊपर थॉट अभी मत देना. अभी आई विल डू माई बेस्ट, आई कवर अप ऑल दी चैप्टर्स, यू डू योर बेस्ट साइमल्टेनियसली विथ मी, मेरे ही गाड़ी में सवार होकर, ओके, आप मेरे साथ ही वो सारे चैप्टर्स कवर अप करो. ओके, एट दी वेरी एंड जब एग्जाम्स आएंगे तब मैं तुमको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना तो शेयर कर लूँगा कि विच चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच चैप्टर इज लेस इम्पॉर्टेंट. राइट नाउ आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द मीनिंग of this particular chapter. I am not telling you this chapter will come for 12 marks, this chapter will come for 10, 8 marks. No, because at the very beginning of this year, the past 1-2 years have been very erratic academically, exam wise. एग्जाम कैसे कंडक्ट हुआ, एग्जाम में चैप्टर कैसे आया, वो चैप्टर को कितना वेटेज था, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस. तो मार्किंग पैटर्न पे राइट नाउ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सस्पेंस है, मैं उस पर कोई टिप्पणी, मेरा ओपिनियन नहीं दे रहा. आई एम ओनली टुडे एक्सप्लेनिंग टू यू, एंड वेरी सिंपली पुट, आपको आपके नोटबुक की ज़रूरत आज नहीं पड़ेगी. वेरी पेशेंटली सुन लेना मुझको. ओके, आपका टाइम बहुत कीमती है. ओके, मेरे एक्सप्लेन करने का और आपका अंडरस्टैंड करने का. सो मैं मतलब एक्सप्लेन करा देता हूँ, सो यू नो कि आने वाले साल में इन द नेक्स्ट मेनी मंथ्स, आई टोल्ड यू लंबा रास्ता है. ओके, हाँ, उबड़ गबड़ है, अप एंड डाउन है. व्हाट चैप्टर्स आर यू गोइंग टू गेट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेरी सिंपली, वो ईयरफोन अंदर रखना, और इफ़ यू आर वॉचिंग मी ऑन अ टेलीविजन, दैट्स वेरी नाइस, यू कैन टेल योर मम्मी पापा ऑल्सो. आप भी आके बैठ जाओ, स्टीवन सर आज आपको भी थोड़ा कुछ पढ़ा देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे सिलेबस में what chapters do we have? Let me put it very simple, बड़े हाई फंडू वर्ड्स में यूज नहीं करता हूँ. फर्स्ट, you have a chapter by the name of Introduction to Partnership. I can tell you it is a little similar to Final Accounts. ज़्यादा मैं इस पे बात करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम दे दो, कुछ मिनट के बाद में मैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में आ जाऊँगा. सो ये आपका चैप्टर 1 है टेक्स्ट बुक में. आई रिपीट, whatever sequence I'm giving here, it is not exactly going to match with the textbook, but it will cover up all the chapters of the textbook. Okay, so you will have a chapter which is a lot like Final Accounts of 11th standard. Then you have accounts for not-for-profit concern. You should think not-for-profit concern का मतलब क्या होता है. Okay, थोड़ा टाइम दो, मैं ये चैप्टर्स का मीनिंग थोड़ा और विस्तार में, मीनिंग टू से इन अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू विल गेट अ चैप्टर जिसका नाम होगा अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट
कंसर्न. ओके, यू विल गेट अ चैप्टर जिसका नाम होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एक्चुअली उसका नाम है, क्वेश्चन उस पे नहीं आता. क्वेश्चन आता है A, B, C. Okay, A is called as admission of partner, B is called as retirement of partner, and C is called as death of partner. थोड़ा तो idea you get what is the meaning of retirement, what is the meaning of death. Okay, there is a next topic which is called as dissolution of partnership. So I repeat, on this page you do notice this word a lot times: partner, 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 partnership. So major part of your syllabus in this year is going to cover this concept called as partnership. Okay, don't worry, I'll explain obviously in a lot detail today itself. Then continue होगा. You have a chapter by the name of bill of exchange. सुना होगा आपने, क्या? बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल. सो उसका डेबिट क्रेडिट वो क्या है, वो कैसे बनता है, बनाने पे उसमें क्या क्या होता है, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डूइंग इन बिल ऑफ एक्सचेंज. देन आपका पार्टनरशिप का स्टडीज बंद हो जाता है एंड यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू कंपनी अकाउंट्स. ओके, so what do you mean by a company? Well, Reliance is a company, Tata Group is a company. Okay, so the Bajaj Group is a company, the Mahindra Group is a company. तो ये companies है, they are not छोटा मोटा दुकान नहीं, they have got they employ lakhs of people, काम देते हैं, इंटरनेशनली उनके ऑफिसेज है. हाँ, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको होगा कि how is company accounts different from what accountancy you have learned. In that, company accounts is a different दुनिया. आपको सिर्फ introduction है, because obviously after 12th standard you have more studies to come. So in those more studies when you do, the more details of company accounts will be covered up. Right now it is only going to be what is the concept of issue of shares. Okay, I'll come to that. Then based on company accounts, okay, you will learn analysis of financial statements. Now give me a little time, I'll tell you what do you mean by financial statements. But analysis जब आप सीखोगे, what will you learn? You will learn common size, you will learn comparative, you will learn cash flow statement, you will learn ratio analysis. At this very moment many of you would be thinking हमने तो ये कुछ सुना ही नहीं है. Yes, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, वो जो ऊपर पॉइंट नंबर 6 है ना, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, उसका आपने आज तक दूर दूर तक कुछ नहीं सुना है. बिकॉज इन दैट 1 year ऑफ योर कॉलेज, ऑनलाइन ईयर ऑफ कॉलेज, आपने जो भी सुना है वो आपने सोल ट्रेडर का सुना है. होल्ड ऑन, आई टेल यू सोल ट्रेडर का मतलब क्या है. ओके, बेसिकली जैसे ये साल खत्म होते आएगा एकेडमिक ईयर, आप लोग कॉमन साइज, कंपैरेटिव, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, नॉट डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट नहीं होगा. ओके, जो सिंपल लेवल है ना, सी कोई भी गेम ले लो, मे बी मेनी ऑफ यू वुड बी प्लेइंग अ गेम ऑन अ मोबाइल डिवाइस, यू विल हैव डिफरेंट लेवल्स. You will have immature level, bachkana level, you will have a medium level, and you will have a pro, a difficult level. So these chapters, company वाले chapters, you have at a very bachkana level, not difficult one. So मेरे को आपको घबराने का नहीं, I don't want you to scare you, just yes, I'm telling you कि भाई company accounts की गाड़ी start हो जाएगी. Okay, then computer in accounting is one chapter. It covers a lot of theory. Okay, that as far as accounting is concerned, एक ज़माना था long time back जहाँ पे everything used to be done in a notebook. Okay, तो उसको खाता बुक कहते थे. अभी वो खाता बुक डिजिटल हो चुका है. So how is, which software, okay, which apps do you use for learning accounting with the help of computers? Okay, so what I showed you are 8 points, but there were some chapters which I merged, मैंने मिक्स कर दिए क्योंकि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. अभी अकाउंटेंसी के बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड कि इन चैप्टर नंबर 3 which accounts we will be drawing, in chapter number 6 which journal entries we will be doing.
हाँ, तो उसका टाइम है। आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बाबा ये चैप्टर्स थोड़ा बाय हार्ट मत करना, बट ये आपके साथ इनकी मुलाकात आगे जाके होने वाली है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर, two things that you are going to learn: इंडियन पार्टनरशिप कानून एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप पे बेस्ड यू हैव गॉट मेनी चैप्टर्स, एंड कंपनीज एक्ट, क्योंकि इंडियन कंपनीज पे बेस्ड यू हैव गॉट मेनी चैप्टर्स. सो दीज आर द टू मेजर पार्ट्स of what will be comprising the subject of accountancy. Okay, now let me explain to you, okay, कि आपने क्या सीखा है 11th स्टैंडर्ड में और आगे जाके आप क्या सीखने वाले हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन व्हाट यू हैव लर्नड इन द पास्ट, वेल पास्ट मतलब द 11th स्टैंडर्ड, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन योर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर. ओके, सो हियर गोस. आपने क्या सीखा है? सोल ट्रेडर. इफ यू आस्क मी, सोल ट्रेडर मतलब वन पर्सन रनिंग द एंटायर शॉप. वो वन पर्सन क्या है? वो मालिक है, वो सर्वेंट भी है, वो झाड़ू मारने वाला भी है, वो कैशियर भी है, वो सेल्समैन भी है. एक ही आदमी है, इतने कैरेक्टर्स. हाँ, क्योंकि वो ही बिजनेस चलाता है. ये होता है, ये इज पॉसिबल. अगर दुकान का साइज छोटा है, इट्स नॉट अ बिग शॉप, एक ही दरवाजा है एंट्री मारने का. ओके, एंड इट इज नॉट व्हाट यू कॉल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. नहीं रे, छोटा दुकान है. अपना जो गली गुच्ची में रहता है ना दुकान, एक आदमी मोस्ट प्रोबेबली हैंडल कर सकता है. यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी. आपने जो सीखा है, आपको जो सिखाया गया है, वो सोल ट्रेडर का हिसाब था. जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, एवरीथिंग सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर. बट जस्ट लाइक यू आर नॉट इन 11th स्टैंडर्ड, प्रमोशन हुआ ना, सिमिलरली बिजनेस का भी तो प्रमोशन होता है. और बिजनेस में, बिजनेस जब सोल ट्रेडर से इंक्रीज होता है तो where does it go? What does it become? It becomes partnership. 2, 3, 4, 5 लोग एक साथ में आते हैं. ओके, क्यों वो एक साथ में आते हैं? That I will explain to you in upcoming lectures. But I repeat, the next level, promotion level of a shop is what? Of an establishment is what? पहले वो सोल ट्रेडर था, एक ही आदमी मालिक था या मालकिन. अभी 4-5 लोग, 2 से ज्यादा. पार्टनरशिप का मतलब 2 से ज्यादा. आपका 12th स्टैंडर्ड, many months to come, many chapters to come, will be dealing with various aspects, situations of partnership. Okay, इसके बाद में by the end of the year you would be introduced to joint stock company. कि कंपनी का अकाउंट्स अलग कैसे है? काफी अलग है, वेरी डिफरेंट. द लैंग्वेज, द भाषा इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. ओके, सो आई रिपीट, जो आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, दैट इज बिकॉज वो कायदे कानून इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे गए हैं हियर. एंड जब मैं आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, उसके कायदे कानून. ओके, सो इट इज नॉट, हाँ स्टीवन सर ने बोला इसके लिए डेबिट है, स्टीवन सर ने बोला इसके लिए क्रेडिट है. नहीं, प्लीज. ओके, वो मेरे पे मत डालना बाबा. वो सारी चीजें जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कानून में दी गई है. ये वाला कानून, ये वाला कानून. तो हम लोग कानून फॉलो कर रहे हैं. अपने मर्जी से हम लोग ये गाड़ी चलाने वाले नहीं है. हम लोग जो भी एक्ट में दिया गया है, कानून में दिया गया है, we are going to follow that, as simple as that. Okay, very quickly, diagrammatically. Diagram. Okay, so you can tell Nana about. Okay, hello. Okay, what do you mean by a sole trader? देख, एक दुकान होता है, एक मालिक होता है. ऊपर है ना, नाना, दादा, दादी. ओके, हाँ, एक ही है मालिक. और वो क्या देती है? वो दुकान में पैसा देती है या देता है. This is what you have learned in the last year. ये साल में ये नहीं है. ओके, तो ये साल में क्या है?
सी ये साल में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप है। सो अभी पब्लिक बढ़ गई, ऊपर देखो पब्लिक बढ़ गई। एवरीबडी विल इन द दुकान पुट मनी। हर एक आदमी अपना पैसा, अपना कला, अपना क्वालिटी, ओके, बाय दैट व्हाट डू आई मीन, अपना पैसा, अपना कला, अपना क्वालिटी। सम पार्टनर्स इन्वेस्ट मनी, कैपिटल। सम पार्टनर्स rarely, but some partners may not invest money, but they will invest their knowledge, okay, their technological knowledge, okay. Maybe if a shop is run by 2 people, okay, example, I know a family, a joint family in which there are twin brothers, and they run the shop in partnership, okay. One brother is good at what you call accounting, finance handling, okay. He is not good at talking to clients, customers. He is not good. The other brother is good at that. जो accounts में अच्छा है, okay, वो accounts संभालता है, ओके, फाइनेंस हैंडल करता है, पैसा हैंडल करता है। वो इतना सोशल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इतना सोशल नहीं है? उसका हाय हेलो नहीं है दूसरों के साथ में, वो थोड़ा रिजर्व्ड है। घर पे बैठना, ऑफिस में बैठना उसको पसंद है, घूमना फिरना उसको पार्टी शाटी पसंद नहीं है। द अदर ब्रदर इज सोशल, ही हाय हेलो, ओके, उसका व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलते ही रहता है। उसको सबका बर्थडे, उसको सबका एंगेजमेंट का डे, उसको सबका ब्रेक ऑफ का डे सब याद रहता है। तो वो क्लाइंट्स को हैंडल करता है, वो मार्केटिंग करता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। एवरी पार्टनर अबाउट दिस पर्सन इज गुड एट समथिंग, दिस पर्सन इज गुड एट समथिंग। अरे बाबा, जब सब लोग एक साथ में आते हैं तो इट्स अ गुड टीम ना, इट्स अ गुड टीम। एवरी क्रिकेट टीम विल नॉट हैव एवरीबडी हु इज एन ऑलराउंडर, नहीं होगा ना। somebody is a specialist batsman, somebody is a specialist bowler, ऑलराउंडर 1-2 रहेगा। और वो ऑलराउंडर का एकदम बेस्ट स्पीड ऑफ बॉलिंग नहीं रहेगा, हर एक मैच में आके वो सेंचुरी नहीं मारेगा। देयर आर 11 प्लेयर्स, एवरीबडी इज गुड एट समथिंग। व्हेन दे कम टुगेदर तो वो गाड़ी चलती है, ओके। हाँ, सो पार्टनरशिप इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर ईयर एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। देन क्या नेक्स्ट सीखेंगे? नेक्स्ट लेवल है कंपनी लेवल। कंपनी लेवल में पब्लिक बहुत है, ये सब लोग ओनर्स हैं, इतने लोग हैं, आप काउंट करने जाओगे तो काउंट भी नहीं कर पाओगे। दीज पीपल आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स, ओके। डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। शेयर होल्डर्स का मतलब ये लोग कंपनी में अपना पैसा डालते हैं, आई रिपीट, एंड व्हाट, ये लोग बदली में उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, एंड दे बिकम PART, पार्ट ओनर्स। दे आर नॉट फुल ओनर्स। दिस पर्सन इज थोड़ा ओनर, दैट पर्सन इज थोड़ा ओनर, दैट पर्सन इज थोड़ा और ओनर। डिपेंड करता है किसके पास कितने शेयर्स है। जिसने ज्यादा पैसा डाला ज्यादा शेयर्स मिला, जिसने कम पैसा डाला कम शेयर्स मिला, बट मालिक तो सब लोग है। इफ अ डिसीजन इज टू बी टेकन, इट इज नॉट टेकन बाय दिस पर्सन और दिस पर्सन और दैट पर्सन, नहीं, सब लोग मिलके AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग, एवरीबडी पुट्स देयर वोट्स एंड देन इट इज डिसाइडेड कि ये कंपनी आगे जाके क्या करेगी। यू विल लर्न पार्टनरशिप, यू विल लर्न कंपनी अकाउंट्स, ओके। लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा डिटेल में करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू टीच यू व्हाट पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स। व्हाट्स फाइनल अकाउंट्स? वेल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट लाइबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, factory, godown, everything that I have coached you, trained you in 11th standard, or your professor, okay. So the only difference is वो 11th स्टैंडर्ड में ना सोल ट्रेडर था, अभी हम लोग पार्टनरशिप का करेंगे। 2 लोग रहेंगे, मिनिमम दो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, हाँ, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, accounts for not for profit concern. Now let me explain to you.
लंबा नहीं, थोड़ा छोटा है. What do you mean by not for profit concern? A sports club is a not for profit concern. A dance academy institution is a not for profit concern. A library is a not for profit concern. A hospital is a not for profit concern. An old age home is a not for profit concern. A environment institution, and an institution which is worried, which fights against air pollution, against water pollution, against noise pollution. Okay, these are all not for profit. Old age home, hospital, library, they don't have every one of these. They don't have factories. They don't make a product. प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है वो, उनके पास फैक्ट्री नहीं है. ये लोग करते क्या है? ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, भलाई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? भी अगर लाइब्रेरी है तो स्टूडेंट्स के लिए होगा, जिनको भी पढ़ने का शौक है, जिनको कीड़ा है पढ़ने का. ऊपर हॉस्पिटल, अरे बाबा, it has to treat patients, normal public, it can be rich, it can be poor. Okay, if somebody is interested in learning cricket coaching, badminton coaching, any sports, so there can be a sports academy for that. Okay, so I repeat, there are different kind of sports academies. There are some sports academies जहाँ पे the charges are very high, but there are some that are run by certain cricketers, sports personalities who don't want to earn profit. They don't want to earn profit. They are like, हमने हमारे ज़माने में ये गेम खेला है और हमको हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ये स्पोर्ट सीखे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे. हम लोग कोचिंग देंगे, रेसलिंग कोचिंग हम लोग देंगे, स्विमिंग का ट्रेनिंग कोचिंग हम लोग देंगे, हॉकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे. वी विल नॉट चार्ज बिग अमाउंट, लैक्स एंड लैक्स नहीं. वी वांट टू ट्रेन. ओके, हाँ. सिमिलरली कि डांस एकेडमी, सर आई हैव जॉइन अ डांस एकेडमी, सर उसका फीस तो बहुत ज़्यादा है. देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डांस एकेडमीज इन दिस. स्कूल भी आता है, कॉलेज भी आता है. इज एवरी स्कूल चार्जिंग लैक्स ऑफ फीस? सम स्कूल्स येस. वो वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे एजुकेशन बिजनेस के जैसे है. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट. ओके, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हाँ वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो बिजनेस के जैसे है. अच्छा तगड़ा पैसा लिया जाता है. वी आर बेसिकली नॉट लर्निंग अबाउट देम. वी आर लर्निंग अबाउट दोज इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे सर्विस पहले है. कि पहले हम लोग जो हमारे पास आते हैं. ओके, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, बट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ओके, चर्च, these are all not for profit concern. How are they different? They don't have a factory, they don't have a product, they don't sell anything, they provide services. तो we have to understand, तो इनका दुकान चलता कैसे है? If they don't sell anything and they don't make any profit, दुकान चलता कैसे है? Well, that is when we learn, I teach you and you learn not for profit concern. Okay, so don't worry, कहानी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत लंबी पिक्चर बाकी है. ओके, फिर यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो एक पार्टनरशिप के साथ कनेक्टेड है. ओके, क्या क्या कनेक्टेड है? रिकॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज द वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन? चेंजेस. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, यू आर मेड अप ऑफ, यू internally are made up of cells, small cells. Okay, whenever you are unwell, okay, something is happening in those cells. The cells, RBCs, the WBCs are going up, they are going down. Okay, and then you have to be given medicines. हाँ, so होता क्या है, वो number of cells ना change होते हैं, and then accordingly, okay, your looks change, accordingly your health keeps on changing. Okay, हाँ, उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस. सो पार्टनरशिप में क्या चेंजेस होगा? सी, वन चेंज इज कॉल्ड एज एडमिशन. व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? अरे न्यू पार्टनर केम. ओके, आई विल एक्सप्लेन इन लॉट डिटेल ऑब्वियसली व्हेन आई डू, बट एडमिशन का मतलब क्या होता है? 2 पार्टनर थे, तीसरा आया, 3 पार्टनर थे, चौथा आया, एडमिशन. हाउ डू यू हैंडल दैट? हाँ, यू विल से आज कम वेलकम पार्टी फॉर यू. वो तो तुम करोगे ना. अकाउंट्स कैसे हैंडल करोगे? हाउ डू यू डू डेबिट एंड क्रेडिट? ओके, दैट इज वन. व्हाट इज द अदर थिंग? रिटायरमेंट. क्या हो गया?
पार्टनर इज बिकम ओल्ड, ही डजंट वांट्स टू नाउ कम टू वर्क. अच्छा रिटायरमेंट, तो क्या करने का, सेंड ऑफ पार्टी दो उसको, वेलकम पार्टी नहीं, सेंड ऑफ पार्टी दो. पार्टी तुम देगा, अकाउंट्स कैसे हैंडल करेगा. सो वी हैव टू लर्न, आई हैव टू टीच यू. How do you handle admission of partner? Which accounts do you do? In retirement, how do you handle him? Because if your mama, papa, anybody who used to work in a company for maybe 20-25 years and one day retired, did they khali hath retire? No. The company calculated the total. The company calculated something called as provident fund, something called as pension, maybe gratuity. They calculated for all the years. And total karke they gave, keep sir, you can now go. Okay, so I repeat, I have to teach you, and unfortunately sometimes you always also have to, that is life, deal with death above. So what if a partner is dead? तो फिर कैसे अकाउंट्स करोगे? It is a emotional moment for the family, but business में it's money. You have to keep the money track clear. You have to keep the money track clear. So you're an accountant, whether it is admission, retirement or death, तुमको अपना क्या करना है, अकाउंट्स क्लियर रखना है. सो इन डेज टू कम हम लोग वो हैंडल करेंगे. हाँ, जब बिजनेस चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तब एडमिशन हो सकता है पार्टनर का, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है. बट कभी कभी जो रिश्ता है पार्टनर्स का वो एक टूट जाता है. रिश्ता टूट जाता है. क्यों टूट जाता है? झगड़ा हो गया उनके बीच में. ओके, पहले तो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई, कुछ लोग बोलते हैं ना. ओके, रिश्ता टूट गया उनका, तो क्या होता है, फिर दुकान को भी बंद होना पड़ता है. उसको कहते हैं डिसोल्यूशन. सो व्हेन यू शटर डाउन परमानेंट, वापिस मंडे को शटर आप नहीं होने वाला, परमानेंट शटर डाउन. हाउ डू यू डू अकाउंट्स? ऑब्वियसली वी आर डूइंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, तो हमको तो अकाउंट्स ही करना है ना. सो वी विल ऑल्सो बी डूइंग अ चैप्टर विच इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देन we will be dealing with a chapter where you will be taught bill of exchange. Right now the only two words that you have heard is bill receivable, bill payable. What is a bill receivable? एक पेपर होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा है, अगर मैं वो कस्टमर को दिखाऊं, कस्टमर से पैसा आएगा, रिसीवेबल. एक पेपर होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा है, अगर किसी ने मेरे को दिखाया तो मेरे को पैसा देना पड़ता है, बिल पेएबल. When you get a bill of electricity from the Adani company, okay, what does Adani company think? Receivable, because they are like, हमने बिल दिया कस्टमर को, अब पैसा आएगा. And for you it is what? Payable, because you have to pay. So it's a document, as simple as that. हाँ, in business how do you handle these? Debit क्या है, credit क्या है, journal entry क्या है, everything will be taught in bill of exchange. Okay, next. Then you will be introduced to what? क्योंकि डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप बंद, तो नेक्स्ट क्या सीखने का? कंपनी, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हाउ डज द कंपनी स्टार्ट? इट सेल्स शेयर्स, दैट टेक्निकली इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स. सेल्स शेयर्स टू whom? To anybody in the public that has money, that has money. Okay, so I repeat myself, you may have seen or heard Scam 1992. Okay, it is a serial, a web serial. Okay, और बिग बुल कुछ तो पिक्चर का नाम है, जो OTT प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. सो व्हेन यू, इफ यू सी दिस सीरियल्स, अ लॉट ऑफ टॉक इज देयर अबाउट द शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में होता क्या है? शेयर्स बेचते हैं अलग अलग कंपनीज. इट्स जैसे आपके लोकल एरिया में एक भाजी मार्केट होता है, वहाँ पे भाजी बेचा जाता है. ओके, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. उसी तरह शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे जाते हैं. तो वो शेयर्स जब बेचते हैं, पब्लिक जब खरीदती है, पैसा देती है, शेयर्स खरीदती है. ओके, उसका अकाउंट्स कैसे होता है, आई विल बी टीचिंग यू. ओके, ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग इन डिटेल, ये सब चीज़ की पढ़ाई करेगी. ओके, एक बार आपने शेयर्स कैसे बेचना है, उसको डील कैसे करना है, वो सब सीख लिया, और कंपनी की अकाउंट्स की गाड़ी स्टार्ट हो गई. देन व्हाट डू यू लर्न? देन यू लर्न एनालिसिस. ओके, एनालिसिस में आप क्या पढ़ोगे?
कॉमन साइज का मतलब क्या है, कंपेरेटिव आपको क्या करना है, उसमें रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू कंपनी अकाउंट्स. आई कैन ओनली स्पीक मोर अबाउट इट व्हेन आई टीच यू इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, जो अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं, बट होगा आगे जाके, डेफिनेटली होगा. सो आई रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स दीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट, नीचे बैलेंस शीट इज समथिंग दैट यू हैव डन. हाँ, बट कंपनी स्टाइल का, और कंपनी का स्टाइल अलग ही है, वेरी वेरी डिफरेंट स्टाइल, एंड द रिमेनिंग आइटम्स. ओके. हाँ, लास्टली something that in the past 2 years everybody has to started to do what, to learn accountancy, to learn almost all subjects, okay, to teach and learn with the help of computers. Your wonderful smartphone is an amazing computer, okay, so it does things very very quickly. So accountancy, how do you do accountancy with the help of computers? Okay, so a smartphone also is a computer. So accountancy smartphone के हेल्प से या डेस्कटॉप कंप्यूटर के हेल्प से कौन से सॉफ्टवेयर से किया जाता है, okay, is what this particular theoretical chapter is going to explain to you. So I repeat myself, there are multiple chapters, रास्ता बहुत लंबा है, and there are going to be some chapters which are okay, some a little medium okay, some a little difficult. Where the chapters deserve a lot of attention and time, I will give it a lot of attention and time. Okay, अगर आप किचन में जाते हो, सभी चीज़ें 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं होती, कभी कभी हो जाता है मैगी नूडल्स 2 मिनट्स के अंदर, ओके, बट सम आपको रखना पड़ता है तवे पे, गैस पे, सिगड़ी पे रखना पड़ता है आधा घंटा, मतलब उतना टाइम जाता ही है, तो वरना उसका टेस्ट अच्छा आने वाला नहीं है. सो as far as my experience is concerned, wherever chapter requires more time, I will devote it more time. Okay, so that is the explanation, and that is almost the end of this particular what do you call lecture. I will be meeting you very soon with the introductory chapter, the very first one, where I will introduce you the concept of partnership. Okay, and then obviously the chapters will maintain a certain flow. Every lecture is going to have a connecting lecture, okay, in the next one. So please do remember that the description, okay, will always provide you the PDF of the entire chapter's question and answers. If the textbook has to be purchased, there is a link in the description below for the purchase if you want to do it from the online platform. Okay, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लेक्चर बहुत लंबा नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुत कीमती है, एंड वट एवर टाइम दैट यू डिवोटेड टुडे टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर टू हियर मी आउट, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू. ओके, जल्दी मिलेंगे दोबारा. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, ऑफ योर लवली फैमिली मेम्बर्स. ओके, दे आर द मोस्ट precious thing and they are the only ones who will always stand by you. Okay, अपना ख्याल रखना. Good day to all of you. God bless. I will meet you in our next lecture. तब तक के लिए टाटा.